session organized by English with Komal platform. It's a pleasure to have you with us today, where we focus on one of the most critical yet often underrated skills in the tech industry, communication as a leadership tool. Today's topic is project management in tech, communicate to lead. In today's fast-paced tech environment, successful project management is not just about tools, timelines, or technical expertise. It's about how clearly you communicate, align teams, and lead discussions. We are honored to host Umair Khan, project manager at Folio 3, with hands on experience managing diverse teams, complex projects, and global clients. Our speaker truly represents how effective communication transforms managers into leaders. तो उमैर सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें फिर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. Sure. Thank you for introducing me briefly. So my name is Umar Khan, as Yusuf mentioned. I am a project manager at Folio 3, working in the field of project management for like almost a decade, more than 9.5 years for now, almost a decade. So yeah, I've been through a lot of complex projects, managing huge teams, and having tough scenarios to deal with a lot of international clients. So that's overall what I do. Actually, this is the first time I'm being hosted as a panelist or something. So I'm not really sure how to proceed. Kareem or Kumal, can anyone guide me? Will there be question answers or anything I should be presenting first? श्योर. सबसे पहले तो हम इसको क्वेश्चन एंड आंसर बेसिस पे लेंगे आपसे, और फिर जो ऑडियंस इंटरेक्शन होगी उसके बाद फिर फर्दर इसको कंक्लूड कर देंगे. Yeah, before we begin, can someone somehow tell me if you all are coders or are non-coders working in the CS field and finding something to move forward in your professional career? Yes, I am from computer science background. Are you a coder or non-coder? That's the Yes, coder. main thing I want to know. A coder, yeah, nice. Is there anyone who is a non-coder can raise their hand? Non-coder like me. So I think everyone of you are coders. I think except for Shariar Khan. Shariar is here. Anyways, I just wanted to know how many of you are non-coder, just because I have been there. And I know the situation that you guys are in, that you are kind of, graduating and are worried about your professional career and wanted to know what will happen if you don't code and you are part of a CS, computer science. So if you are confused and wanted to know what happened with me as I was in your, shoes, finding something as my professional career and don't like to code at all. So I would love to answer that if anyone is, looking forward to that. Other than that, I can ask any questions if you guys have in terms of the professional career or how a project manager manages things. Forum is open, guys. Anyone can ask anything. Umair, firstly we will take our session and then question and answer session, okay? Sure. So what is the session about? Project management. So should I give you an overview how I manage things? Yes. Right. So first of all, as your topic indicates, how important is speaking English in my professional career or a professional career of a project manager, I would say 110%. So I believe in the era of software engineering or computer science, you don't work with local clients because you want to earn in dollars or in foreign currency, of course. So you have to communicate to the people who are not in your country and sitting elsewhere,
and the only medium of communication which is an international language is English. Whether you are talking somebody in Arabic, in UAE or Spain or Germany, they all know how to speak English. So that's the whole thing. You can make yourself master or practice to speak English if you are thinking about proceeding your career into a professional project management job. So yes, it's very important. And for me, I have to talk to the client on daily basis and get their requirement and explain that in simple Urdu to my developers, engineers, architects, QAs, designers, and whatever I'm working with. Get things done, show a demo to the client, get their feedback, get the feedback incorporated, and then show it to the client. And when this client is satisfied, I got my payment, got it release, things ends in a good way, things like that. So my whole soul GD is to communicate, communicate with the client, get the information, communicate with the engineers or people within my team, get things done, and get to the vet by the client. And as soon as things are done as they were expected, my job is done. That's a short summary of what I do. श्योर। सो उमैर, आप अपनी जर्नी ज़रा डिस्कस करें कि बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप टीम सेलेक्ट करते हुए कौन से फैक्टर्स देखते हैं, और ड्यूरिंग द टीम अगर किसी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं लगती तो फिर उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं? उसको आइदर टीम से निकालते हैं या निकालना चाहिए, या फिर उसको कैसे उसको आगे हैंडल करेंगे? So first of all, no project manager selects his or her own team, never. There is a separate department which is called resource group. They allocate resources to us. We just have a choice either to take that person or not, or ask a replacement. That's all, nothing else. We are handed over a team of engineers. Let's say I have a project, a complete engineering project, and I need developers. I need front-end developers, I need back-end developers, I need a designer, I need QAs, and that's all. So I have to start with like all of them, generate a KD session or a kickoff session with all of them, and kick off the meeting, or I would say kick off the project. During that project, I have to assess every single member, what they are doing, how they are doing, are they doing in a good scenario or not, how they are performing. I mean, ask them all, and it's not kind of performing well and things like that. But this is the last step I would do. First of all, I need to work with that person, and thinking that I don't have any replacement right now. So I need to come up with a plan that will work with that person. So my first step would be to sit in a room like that, sit with that person, explain him the way I think, my genuine feedback, and then ask for his point of view, what he or she is facing. Is there any personal problem she or he is dealing with, so I can help him or her and get things resolved so that he can concentrate on the project. If not, I'll assign a lead to that person to double check his work, get him to the base, and somehow get it work. If not, I have an option to find a replacement, and this is through the resource group. I don't select. Okay, there is a message from Samia. Yeah, so Samia was just explaining the same thing, that my shot, get it done by the engineers and get it vet by the client, that this is what he or she was expecting. That's my whole journey. Yes, Yusuf. यस, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन को
कौन सी क्वालिटीज की बेसिस पे वो आइडेंटिफाई खुद अपने आप को कर सकता है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है या नहीं बन सकता? यार आई वुड से प्लानिंग प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, दैट्स द टू थिंग जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कम्युनिकेशन, लेकिन आई वोंट टाइड इट टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो तो आप लोगों को भी आनी चाहिए। अगर आप लोगों ने कल को लीड बनना है तो here in folio 3 every lead communicate with the client, he comes on a call with me as the project manager। तो अगर आप मैनेजर एसएसई से लीड बन सकें, लीड बनने के लिए यू हैव टू बी एबल टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट, दैट्स इन अ मैंडेटरी थिंग। तो वो तो हर किसी के लिए मैंडेटरी है जो कि आप लोगों का एजेंडा है स्पीकिंग इंग्लिश। बट द अदर टू थिंग्स इज ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग। एक प्रोजेक्ट आता है, हमारे पास काफी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, लेट्स से इसमें फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, बैक एंड डेवलपर चाहिए और उनकी डिपेंडेंसीज मैनेज करनी है। तो मेरा प्लान ऐसा होना चाहिए कि 2 या 3 फ्रंट एंड के बंदे, 1 या 2 बैक एंड के रिसोर्सेज, उन सबको साथ लेकर चल सकूं। अब अगर मेरा प्लान ही बेकार होता है कि भाई पहले सारे बैक एंड डेवलपर्स एपीआईज लिखेंगे, फिर फ्रंट एंड वालों को देंगे, फिर फ्रंट एंड वाले उसमें अपना काम इंटीग्रेट करेंगे, दैट्स नॉट हाउ इट कैन वर्क। हमें लिमिटेड टाइम दिया जाता है, लाइक 2 वीक्स, 6 वीक्स, 10 वीक्स के अंदर प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। सो मेरा प्लान इतना स्मार्ट होना चाहिए कि फ्रंट एंड बैक एंड दे डोंट गेट ब्लॉक्ड और स्टक इन अ बॉटलनेक, दे वर्क साइमल्टेनियसली। तो मेरा प्लान अच्छा होना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग। अगर आप प्लानिंग में अच्छे हैं, और ये पता चल जाता है ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी, जब आप एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करते हैं, जब आप किसी सोसाइटी के लिए कोई इवेंट प्लान करते हैं, आप कोई 14 अगस्त का कोई कल्चरल इवेंट कोई प्लान करते हैं, इन सारी चीज़ों से आपको अंदाजा हो जाता है कि प्लानिंग कैसी है। अगर आपको नहीं पता चल रहा, आपके पीयर्स को पता चल रहा है। पीयर्स तो प्रोफेशनली होते हैं, आपके फ्रेंड्स को पता चल जाएगा कि आप कितनी अच्छी प्लानिंग करते हैं, आपने यूनिवर्सिटी का कोई भी इवेंट कितने अच्छे से प्लान किया है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप प्लानर है कि नहीं है। आपको नहीं पता चलता तो आप किसी से पूछ लें कि मैंने प्लान किया था इवेंट, कैसा था, अच्छा था, बुरा था, समथिंग लाइक दैट, तो आपको फीडबैक मिल जाएगा। एक प्लानर, सेकंड इज ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर होने के लिए भी आपको बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगेगी। ऑर्गेनाइजर होने के लिए आपको बस ये कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, चीज़ों को सही जगह पे रखना आना चाहिए, सही काम सही बंदे को एलोकेट करना आना चाहिए। वो तो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स से ही पता चल जाता है यार, आप कितनी चीज़ें सॉर्टेड रखते हैं। आपके डेस्कटॉप से पता चल जाता है कि आपके डेस्कटॉप फुली स्कैटर्ड है या फिर आपने फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स रखे हुए हैं और चीज़ें काफ़ी मेंटेन रखी हुई हैं, कितना साफ सुथरा लिख रहे हैं, कितना ऑर्गेनाइज्ड है। बस ऑर्गेनाइज और प्लानिंग की 2 चीज़ अच्छी आती हो, आपको इंग्लिश बोलना आती हो, यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर। आपको कोडिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं है नीट, मतलब अब तो एआई का जमाना आ गया है, कोडिंग की नीड किसी को भी नहीं है। इन शॉर्ट, नॉन कोडर्स भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं थ्रू वाइब कोडिंग। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपको ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को आता है, आपको कम्युनिकेट करना आता है, आप प्लान अच्छा बना लेते हो, यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर। आपको सिर्फ एक्सपीरियंस की जरूरत है, जो कि आपको मिल जाएगा जब ग्रेजुएट करोगे। Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are. Hope you are doing great. Most welcome for joining this session. I have some basic questions from my side because here are a lot of students. Those doesn't know that what is project management. So I have a question that what are the main responsibilities of a project manager? Yeah, as I explained, the main responsibility of a project manager is to satisfy the client. That's the whole basic of it. अगर मेरा क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है, मैं अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं हूँ। भले मैं जितनी भी मेहनत करता हूँ, दिन और रात काम करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड रखना है। दैट्स द होल थिंग। एंड हाउ डू आई डू दैट? आई हैव टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, whatever he or she wants to get developed. Understand that, get it documented and explain that to the engineers कि ये बनवाना चाहता है क्लाइंट, ऐसे बनाना है, इतना फास्ट होना चाहिए, इतना मोल्ड होना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए फीचर स्कोप के लिए, एंड आई नो ऑल दीज टेक्निकल थिंग्स। जैसी चीज डेवलप होती है, आई शो अ डेमो टू द क्लाइंट, गेट इट रिकॉर्डेड कि इस तरह से बनाया है हमने, हाउ डज इट लुक। क्लाइंट का फीडबैक लेता हूँ, क्लाइंट कभी तारीफ करता है, कभी बुराइयां करता है कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, ये तो ऐसा नहीं है, मैं तो वैसा नहीं है। तो आई रिकॉर्ड दैट सेशन, शो दैट टू द टीम, यू नो, गेट अ फीडबैक, स्टोरी टिकट्स क्रिएटेड। फिर दोबारा उसको ठीक करते हैं, इसको फीडबैक इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। फिर दोबारा वो चीज क्रिएट करते हैं दैट क्लाइंट्स वांट्स, एंड देन शो दैट द क्लाइंट, इवेंचुअली डिलीवर इट टू अ यूएटी।
भाई आपको बहुत दिखा दिया डेमो, ये लें, इससे खुद खेल लें, एक यूआरएल दे दिया, एक लिंक दे दिया डिप्लॉय करके, तो क्लाइंट खुद खेलता है और फिर इवेंचुअली तारीफ करता है कि हाँ दैट्स व्हाट आई वांट, दैट वाज माय इवेंचुअली अ प्रोजेक्ट, और दैट्स इट। अगर क्लाइंट मेरा सेटिस्फाइड है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर। वो बात की बात है कि मैं टीम को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, किसे कैसे डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गेट द क्लाइंट सेटिस्फाइड। Okay, that is great. So, how do you plan and track a project from a start to finish? That's not a silver bullet that I can explain in 2 words. That's totally depending on how the project is coming in and what is the nature of the project. I can give you examples. Let's take an example of a website project. Let's take an example of a small website project. Let's say somebody wants to create an e-commerce website. He or she has a great physical store of shoes in England, London, and they want a website to convert that into a digital business. So for me to start with, I'll have an initial requirement gathering session with that client. I'll ask, do you have a logo? Is it printed on your store? Can I see that? Is it a vector logo that I can incorporate and things like that? I'll start with the very basic thing, logo. From the logo, if I see the logo, I'll get to the theme of it. Let's say English with Komal. I can see the colors, I can see the fonts. I can get a homepage design for him or her. Just because I know the font, I know the colors, I know the brand. I can, use the same theme and create a homepage and show that to the client. This is just a basic version of a design that, how it will look. This is the homepage, as we have discussed. As soon as you approve the homepage, we will move towards the inner pages, design them, show that to you, get your approval or get your feedback, and then start the development work. Once all the designs are approved, we'll start with the development. And in the development, there are a lot of technical nitty-gritties that I don't think I should be going into in this first session. And once they are kind of developed, I show that to the client again that these are the front end designs. I'm working on the backend simultaneously. As soon as the backend is ready, the person can click on the product and get added to the card, get the payment method integrated, PayPal or Stripe, whatever it's needed. And then once all that is developed, I need to integrate that and show to the client as part of my demo or as part of my delivery. So this is a quick overview of one of the project, which is a e-commerce website that I need to develop for the client. But these are thousands of different kind of project, and every single time we have to deal it separately. Okay, that is great. What tools do you use for project management? There are multiple tools, but I usually use Jira for tracking, and I use Basecamp for documentation, and sometimes Confluence as well for documentation. So these are the two primary tools that I use. And other than that, we have few of our internal tools for resource management, which is called the RM tool. So I use that. I don't know if you guys are aware of that or not, but yeah, Jira is my first tool that I use for managing project. Okay, that is great. So, how do you handle project risk and unexpected problems? Again, no silver bullet. I have to deal as per the situation. So I can give you examples to to understand better how do you deal with the risk. Let's say I have a risk in a project that the client is continuously changing the requirement. Whenever I deliver a thing or a demo, and the client say, it looks good, but it should be something like that, and he or she has not explained that earlier in the initial scope discussion, and she or he is coming up with that now, and we have already developed it, will take us a lot to redevelop or rework. That will add a lot of cost to it. So this is a huge risk. In short, we call it scope creep. The scope is getting creeped by the client does not know what he or she wants. He's just kind of experimenting through us. And in order to handle that, we have a lot of different methods. First of all, we need to understand the client, the level of client, how convincing he or she is. What is the level of client in terms of her organization? If she's the CEO, we don't just go directly and ask her, I'm not going to do it. No,
we have to come up with a better way. First of all, we need to understand the client. And once we know the client, we have to come up with a strategy, which is called the risk mitigation strategy. We identify a risk, lock it, and then create a risk mitigation strategy. If I'm working with a CTO or lower person, I will document each and everything, get it signed by the client before moving forward. Let's say if some feedback is to change everything into XYZ font and different colors. I'll create a document, I'll send it to him or her, and ask him or her to sign it before I work on it. And as soon as I have that in written and signed with me as part of the feedback or change request, I'll have something to fight on if he or she denies that I don't want that, I need a new color or a new font. So we need to document every single thing. And when there is a time that he or she needs a new revision, we just come up with this thing that this was what was kind of decided. And if we are not deviating from a plan, this would be a CR. CR means change request. Whenever we do a CR, it use additional hours and additional payments. So since we are working on an agile environment, changes are always welcome. But with every single change, we need a CR. We need additional money and additional time. So in order to convince the client, we need to present with the CR, and in order to come up with a CR, we have to have something proof that I just mentioned, get things signed by the client. Okay, that is great. So how important is communication in project management? I don't have words to explain, but there is no project management without communication. There is no project management. The whole soul project management is communication. You communicate with the client, you communicate with the team, you resolve the conflict with the communication, you deliver things with communication. So the project management is totally communication every single time. Okay, that is fantastic. So why is English important for a project manager? Yeah, as I explained that nobody wants to work with the local client. You can start with, because you're a fresher, you can earn in PKR, but eventually you want to work with outsiders, or want to earn in dollars, pounds, or dirhams, or something like that. So your goal is to get money from outside Pakistan. So you need a communication tool or a medium to communicate with outsiders. Let's say you want to talk to someone in Germany, and you don't know how to speak German. So you should know how to speak in English, and that German should know how to speak English. And usually this is the case. Every single project manager and the client who want to work with international people, they know English. So if you want to earn in dollars, earn in pounds, earn in foreign currency, you have to be able to communicate in English. That's why it's important. Okay, that is great. So do you use English for emails, meetings, or documentation? Yes, every single communication is in English, every single thing. Yeah, but the thing is, we have chat GPTs now, we have other AI tools, so I can get my email proofread by chat GPT or Claude or whatever LLM I'm using. But yeah, eventually I have to write something or give a prompt in English to get it done. Okay, that is fantastic. So how does good English improve teamwork and coordination? Teamwork and coordination, it's not necessary to speak in English within your team. If you're working with a local team, what we usually do, because we are sitting in an office, I have a team here locally, I communicate in Urdu. I usually take my internal scrums in Urdu, and just to have a good bond with them, because there could be people who don't speak good English. So I have to speak in Urdu when I'm talking to my people internally. But there are client-based scrums as well, which I do and at the end of the day. So in that scrum, every single person from my team, including myself, have to be presented in front of the client, explain what we did today, what we are going to do tomorrow. That's in English. So in short, internal things can be not in English, but the communication with the client has to be in English. So yeah.
Okay, that is great. So, what problems can occur if communication is not clear? A lot of problems, if I'm not able to understand properly what client wants, what should I be building, what should I be creating, I can be going into a totally wrong direction at the end of the day or at the end of the month. When I present things, it can be catastrophic that the client wants A and you are kind of presenting B or C. It could go disaster. It could, have a charge back all the money that, was sent to us. It could be a legal case. It could be even worse. You have to understand what the client wants in clear communication, either in written or in, understanding from on a call or any medium. But you have to understand what the client want, and make your people understand what the client want, both in English, I would say. Okay, that is great. So, how do you communicate with international clients or teams? um with international teams, is it's always in English. There is no third language. Internally Urdu, and with the international people, it's always English. I usually have multiple mediums, that's, meets, google google meets, Microsoft Teams, and Zoom calls. And other than that, sometimes, very rarely, we usually have a visit, international visit, to go to meet our clients in person in US, Canada, UK, understand their needs, what they're, planning for, like, next 2 years, 4 years as a roadmap, and come back and make your people understand what the client wants in the long run. So yeah, everything has to be in English. Okay, that is great. So, why is English considered the official language in most projects? Um, just because it's an international language and everyone understands that. As I give you the example of Germany. German don't like English, as per my experience. They don't like English. Same goes with Japanese, same goes with Chinese. They don't like English at all. But if they want to work with international people, they have to be able to communicate English. They usually struggle a lot while speaking English, as per my experience. But yeah, it's necessary to, for them to speak in English, just because they don't expect us, the Desi people or the Western people or the Eastern people, to speak in their language. Japanese is too hard. Chinese is too hard. German is too hard. Arabic, it's too hard. So whenever you work with UAE client, you speak in English. That's the thing. It's an international medium. Okay, so do you face any problem when you have to talk with people from abroad country and they use different accent when they speak English? Yeah, I do. Especially one single country, which is Britain, England. They speak too fast, and they usually broke words into half, and move forward. And we can call it a slang, but it's usually not a slang. It's their native language. They speak too fast, and they usually broke words into half, and then go forward with that, and assuming that everyone will understand the language. So usually the only country which is, difficult for us to understand is Britain, England people, because they don't, pronounce the whole word. They just shortly pronounce it and move forward. But other than that, every single country speaks, a clear English, and it's totally understandable. Okay, so can poor English communication affect project success? Of course, as I explained, it could, go to a disaster situation if you don't communicate well. So yeah, vice versa. Okay, that is great. So if, for example, there is a student or she wants to pursue her career in project management, so what will be the beginner steps she must take? Any advice from your side? Yeah, she should be able to speak in English. She should be able to plan things in advance, because risk mitigation, risk management, everything is proactive. There is no reactive situation or solution in project management. You have to plan ahead of time what people are doing right now, what they will do tomorrow, and what they will be doing day after tomorrow. You have to plan ahead. So if you are a good planner, you can be a
great project manager. So plan things in your daily life, plan your time, plan your schedule, plan your eating habits, plan everything. If you have too much time available, plan an event in your university. It will give you a quick overview of your planning skills. And as soon as you are good in planning things, you can be a good project manager. But you should be a good communicator as well, of course. Okay, so what will be the like simple roadmap for following that if you want to pursue your career in project management? If you are doing CS and you don't like coding, Mhm. uh, you get two directions to move forward. Either you become a QA or you become a project manager. So and eventually, if you are a QA and are appointed as a junior QA, then you become a senior QA, then you become a lead QA. There is no architect in QA. After lead QA, you will become project manager eventually. So yeah, it's totally a single direction. If you are a non-coder, you don't like to code, you can directly become a project manager. So what I did in my initial career, I was a bidder. I was in sales. I was a person who used to communicate with the client to get the project onboarded. I was a sales guy at the initial stages of my career in 2016 or 2017. Then eventually the projects that I bring into the table, I started managing them myself. And from that point of view, I became a project manager from there. So yeah, if you're a non-coder, you can directly start with a few certifications. Google provides good certification like Google Project Management, and Microsoft provides project management certifications. There is a Scrum Master certification from Scrum.org. Go ahead and do those certification and start applying for a project coordinator or associate project manager. Eventually, when you are kind of selected, they will teach and train you for project management part, and then you will go there. Okay, that is great. So, how does English communication affect career growth from your side? Yeah, I explained that as well. That let's say if you are a coder, you can be a good SE, software engineer, and let's say you code too well, and in 3 years or 4 years you will become a SSE, senior software engineer. But in order to move forward towards your career, in order to become a lead software engineer, you have to be able to communicate in English, because lead software engineers go with the project manager to the client meetings. Because project manager can't understand APIs, project manager can't understand the technical jargons, the Kafka and the backend and all. So they usually take leads or architects with them to the client's meeting. So in order to be promoted as a lead software engineer, you have to be a good communicator, because eventually you have to communicate with the client. So it is very important for you guys to be able to speak in English. And for me, it's a bread and butter for me. Even a associate project manager should be able to speak in English, because it's his or her JD to communicate with the client. Okay, that is great. Does good English improve leadership qualities? Yes, it makes you able to help people understand things fast. So it makes you a good leader that way. Because if you're not a good communicator and you explain things like twice or thrice and people are still not understanding what you're saying, it won't make you a good leader at all. They will eventually make something which is not needed. They will make some blunders, and that will come to you because you are not being able to understand, make them understand properly. So yeah, if you're a good communicator, you can be a good leader, of course. Okay, that is great. So, how does English help in promotion and job opportunities? Same as I said, yeah, exact same thing. Yeah, you have to be able to be a good communicator in order to move forward in your career. Otherwise, you will stuck on a position like SSE, even though you are a great coder, but you won't become a lead because you can't communicate and understand things properly in English. Okay, so what advice would you give to improve English communication skills? Hmm, speak with yourself in English. Watch a lot of movies. Watch Netflix series
and everything should be in English. And no dub movies, for God's sake. Watch movies, speak with your friends in English if they don't make fun of you, and if possible, record yourself speaking in English. And when you play it back, you will find a lot of mistakes. Correct them, then speak and record your sessions, record yourself speaking in English. And especially in sessions like this, I see only Komal and Yusuf are speaking. Rest of the people are not speaking at all. मैं उर्दू में ही बात कर रहा हूँ. I'm using a bilingual communication. आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं. That's the whole point. तो इंग्लिश सीखने के लिए सिर्फ एक काम करना है, आपने बोलना है. Yes, you are right. Audience, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो you can ask. Okay, Umair, one thing is like people are thinking that if they will go with tenses, they will improve their English. So it is true, or like it is a myth or something? It's a myth. It's a myth. Tenses में मतलब हम लोग जब किसी से बात करते हैं, we don't use tenses. Not at all. It usually help us write things. तो हाँ, of course help करेगा अगर आप लिख रहे हैं तो. Not in speaking. Speaking, it go with the flow. Okay, Samia is asking something. First, Assalamu alaikum, sir. Explain कर दें project management के बारे में. I am a student of second semester. ये वाला मैं आंसर कर चुका. दूसरा वाला मैसेज है उनका. लेकिन समिया प्लीज स्पीक अप. आप बोले, मैं आपको आंसर करता हूँ. लिखने की क्या जरूरत है? इट्स ओपन फोरम. Are you there, Samia? आपका माइक चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर. जी आ रही है. सर वो मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे हमारी फील्ड है सीएस की, तो अक्सर ये सुनते हैं कि भाई कोडिंग सीएस में आ गए हैं तो अब कोडिंग ही करनी है. तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि अगर हमने सीएस जैसे अभी फर्स्ट ईयर हमारा हो चुका है, अब हमने पाइथन पढ़ी, अब हमें पाइथन अच्छे से नहीं है लेकिन उससे अच्छी एज कम्पेयर टू जावा हमें आ गई. तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि हम कोडिंग की, अगर हमें कोडिंग यानी नहीं भी आ रही है, अभी 1 साल हो गया, यानी कोडिंग थोड़ी थोड़ी आई है, कम्प्लीटली भी यानी कोड खुद से करना नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत हो जाता है, फिर भी एआई के पास जाना ही पड़ता है कम्प्लीटली मतलब. तो उसका क्या हल है? या कोडिंग की तरफ ही जाएं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पर और नेटवर्किंग वगैरह बढ़ाएं? तो थोड़ा एडवाइस वगैरह सजेशन. यस, सोशल मीडिया पे जाने की कोई जरूरत नहीं है. मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ. मैंने फेसबुक आईडी बनाई थी 2009 में और मैंने 2015 या 16 में उसको क्विट कर दिया था. अभी मैं नहीं हूँ उस पर. मैं सिर्फ लिंक्डइन पे हूँ. इंस्टाग्राम पे मेरी वाइफ मेरा अकाउंट यूज करती है, लेकिन मैं वो भी क्विट कर चुका 2017 में जब मेरी शादी हुई थी. तो द थिंग इज, सोशल मीडिया पे तो वैसे भी जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो आपका सवाल है, विच इज अ वैलिड क्वेश्चन, कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और आपको कोड नहीं आता, तो लुक नो फर्दर. आपके सामने इतनी सारी एग्जांपल्स हैं. मैं बैठा हूँ, शरियार अभी ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन शरियार स्टार्ट में था. हम लोग दोनों वी आर नॉन कोडर्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास के बहुत सारे कोडर्स से बहुत ऊपर हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी अर्न एंड व्हाट वी हैव अकम्प्लिश्ड सो फार. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कोड आना चाहिए. और जिनको कोड आता है उनके लिए भी खैर बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है. इवेंचुअली एआई सब कुछ रिप्लेस कर ही रहा है. हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो कोड नहीं करते, सिर्फ एआई से लिखवाते हैं, उसको मोल्ड करते हैं थोड़ा सा. लेकिन अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि कोड ना करो. कोड समझ में आना बहुत जरूरी है करियर के लिए, ताकि फ्यूचर में आप उसको एआई से करवा सको. लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आपको अगर कोड नहीं आता, यू डोंट हैव टू बी वरिड. और इसके लिए किसी नेटवर्किंग के इवेंट में जाने की जरूरत नहीं है. आप लोग एक तो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग ठीक करें, पहला पॉइंट तो यही है. दूसरा ये कि सर्टिफिकेशंस करें. सर्टिफिकेशंस भरी पड़ी हैं, यूट्यूब के ऊपर ही मिल जाएंगी आपको, कोर्सेरा पे मिल जाएंगी. $5 $10 खर्च करें. ब्लैक फ्राइडे की सेल आती है, अनशन बहुत सारी सेल्स आती हुई हैं, उसके अंदर ना आप कोई ना कोई कोर्स परचेज करें. और इसके अंदर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बहुत सारे टूल्स पता चलेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा. कोर्सेज करें, एंड में सर्टिफिकेशन मिलती है, उसको कलेक्ट करते हैं, जमा करते जाएं. मेरी सीवी में कुछ 7-8 वो पड़े हुए हैं, क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट्स चिपके में मैंने लगाए हुए. सो सॉरी, मैं कह रहा था कि आपने सर्टिफिकेशंस कवर करनी है जितनी ज़्यादा हो सकती हैं. और जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया, आप अच्छे प्लानर होने चाहिए. अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप प्लानिंग करते हैं ना अगर, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लेंगे बहुत ईजीली.
अब प्लानिंग कैसे करनी है ये भी मैंने आपको बताया कि अपना डे प्लान करें, अपनी रूटीन प्लान करें, अपने इवेंट्स प्लान करें, सबको अंदाजा हो जाएगा कि आप कैसी प्लानिंग करते हैं। तो अगर आपको कोड नहीं आता, अगर आप CS ग्रेड हैं, टेंशन नहीं लेनी, आपका कुछ हो जाएगा। Right. So Umair has answered the query of Samia Asghar. So if anyone else wants to question something, we are in question and answer session. So he or she can ask. यस प्लीज स्पीक अप। कोशिश करें इंग्लिश में पूछें, नहीं होता बायलिंगुअल में पूछें, मिक्स इंग्लिश उर्दू मिला के पूछें, लेकिन प्लीज स्पीक अप। आप लोग जब इस तरह के फोरम्स में बोलेंगे नहीं तो इवेंचुअली आप बड़ी टीम्स के सामने भी नहीं बोल पाएंगे और क्लाइंट के सामने भी नहीं बोल पाएंगे। और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जब क्लाइंट्स खुश होता है, सक्सेसफुल हो जाता है प्रोजेक्ट, या फिर क्लाइंट बिगड़ जाता है या प्रोजेक्ट खराब हो जाता है, इन बोथ केसेस we have to go ourselves to the CEO, CTO, COO, मतलब हाई लेवल मैनेजमेंट के पास जाके उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आप उनको भी फेस नहीं कर पाएंगे अगर आप इतना छोटा सा ऑडियंस फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो स्पीक अप, पूछें, बताएं एक्सपीरियंस इसके बारे में। तो ये कि आपके लिए अच्छी एक्सरसाइज होगी लोगों के सामने बोलने की, जो कि आपको करना है इवेंचुअली। Yes, you are right. It's a great opportunity for us to speak in front of you. You are from an industry level. So these are the things so that where our confidence level increases. Yes, of course. That's the spirit of our these type of session. I see Mehak and Suhaiba. तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है? आई विल रिक्वेस्ट कि अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज स्पीक अप और लिखने के बजाय कॉल पे पूछें। अच्छा उमैर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि लाइक एक्सेंट मैटर करता है इन इंग्लिश No. कम्युनिकेशन? इट्स अ ग्रेट मैथ। एक्सेंट उनके लिए मैटर करता है जो फेक कर रहे होते हैं। फेक मींस आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह के बिजनेस भी हैं वेयर यू नो चेंज योर नेम टू अ सूडो नेम, और मैं अपने आप को जॉन कहना शुरू कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि आई लिव इन डेनमार्क, आई लिव इन कैलिफोर्निया, और मैं जो हूँ आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। दैट्स समवॉट फ्रॉड। अगर आप अपने नाम से आ रहे हैं, उमैर खान के नाम से मैं इस क्लाइंट के सामने जाता हूँ, आई कैन यूज माई ओन एक्सेंट। अब मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब कभी भी यूज नहीं होता ये चीज अनलेस यू आर फेकिंग इट। मतलब आपने बोलना है कि मैं जो हूँ मैं यूएस में रहता हूँ और मैं आपके लिए जो है ना बहुत अच्छा काम कर दूंगा और मुझे यूएस वाले पैसे दो। ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपने एक्सेंट में जाएं ताकि आप फ्री कॉन्फिडेंटली आपसे कम्युनिकेट कर सकें और वही पैसे मांग लें जो ये लोग देसी को देते हैं। अच्छा ही होता है वो। जी महक, यू रेज द हैंड। यस महक। आर यू देयर महक? आप म्यूट पे हैं। वालेकुम सलाम महक, स्पीक अप। Assalamu alaikum, sir. Am I audible? यस यू आर। No, sir, I don't have any questions right now. Mashallah, you explained very well. Jazakallah, sir. थैंक यू, थैंक यू। You know why I just asked this question about accent? Because when I used to teach English over there, you know, there were a lot of students, or about in online as well, the people from abroad country, they don't understand the Urdu one accent. That's why I just asked them, if they listen their accent, they understand things well. No. That is the not case there. That as per my experience, that sometimes goes bad. You know, you are kind of dealing with two things: making your accent and speaking English. You should be focusing on only single things. And there is no Urdu accent, and there is no English accent. There is a British accent. There is an American accent. That's all. दो accent है खाली, अमेरिकन और इंग्लिश, और दोनों बहुत डिफरेंट हैं। आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं लेकिन आप मतलब अपना स्टाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है। दैट्स नेवर द केस। आपका एक्सेंट खुद ब खुद ही बन जाता है। आप किसी को कॉपी कर मतलब आप किसी को कॉपी ना करें, आप बस सीखें। इवेंचुअली व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, यू समवॉट follow anyone.
लेट्स से इन माय केस मैं 2012 13 14 में रेसलिंग बहुत देखता था, तो इवेंचुअली मेरी स्पीकिंग इंग्लिश रेसलिंग में जो कमेंट्री होती है उसकी तरह बन गई थी ज्यादा। रेसलिंग आपको पता है इंग्लिश में ही होती है, और उसकी कमेंट्री मैं बहुत सुनता था, बहुत लाइक लिटरली एवरी सिंगल डे। तो मेरी स्पीकिंग जो है ना वो उस तरह से ही बन गई थी थोड़ी बहुत। और फिर मैंने मतलब किसी ने मुझे फीडबैक दिया कि यार तुम बहुत तेज बोलते हो, मतलब कुछ समझ में आता है कुछ समझ में नहीं आता, और वर्ड्स बीच में गायब हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको स्लो डाउन करना सीखो। फिर मैंने ब्रिटिश मूवीज देखना शुरू की। मतलब मैंने मुझे अच्छी तरह से याद है लास्ट किंगडम के नाम से एक सीजन आता है नेटफ्लिक्स पे, मैंने वो देखा। उट्रेड नाम था उसका हीरो का, वो बहुत आराम आराम से एक एक वर्ड ब्रेक कर करके बोलता था। तो वो मैंने पूरा सीजन देखा, उस तरह के मैंने और भी सीजन निकाले हिस्टोरिकल, तो उनसे मुझे काइंड ऑफ ना आहिस्ता आहिस्ता बोलना आया। लेकिन इवेंचुअली मेरा अपना एक्सेंट है, मतलब मुझे इसको फेक करने की जरूरत नहीं है, नॉट एट एनी लेवल, खुद ब खुद ही बन जाता है। और यू शुड बी एबल टू स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, दैट्स ऑल। एक्सेंट डजंट मैटर एट ऑल। अगले को समझ में आना चाहिए आप क्या कह रहे हो, कैसे बोल रहे हो, इट डजंट मैटर। क्योंकि आप 10 लोगों से बात करते हो इंटरनेशनली, 10 के 10 डिफरेंट एक्सेंट में होते हैं। आपको मजा उससे बात करने में आता है जिसकी बात आपको समझ में आए, जो क्लियरली बोलता है। सही है। और यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप कम्युनिकेट करो तो दूसरे बंदे को आपकी बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो बोल जाते हैं लेकिन जो सामने वाले होते हैं वो भूल जाते हैं कि भाई वो बिगिनर है जो आपको सुन रहा है, वो नहीं समझ पाएगा आपका एक्सेंट। क्योंकि मैंने पर्सनली भी बहुत मुश्किल तरीन एक्सेंट भी सुने हैं और इजी भी, तो इजी वाला ज़्यादा बेहतर है। बस कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए मेरे हिसाब से कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपकी बात को सुन पाए और उस पर लाइक एक्शन दे पाए। या तो ये एक चीज़ है। अच्छा अगर उमैर, हम एक क्वेश्चन। अच्छा, मैं एक दो टिप्स देने चाह रहा था आप लोगों को, क्योंकि मेरे कुछ एक दो टीम मेंबर्स थे जो कि कम्युनिकेशन में स्ट्रगल कर रहे थे स्टार्ट में, तो आई हेल्प देम आउट। मैंने उनको काफ़ी टिप्स दी, ट्रिक्स दी, फिर उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। इवेंचुअली दे आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश एंड विद द क्लाइंट डायरेक्टली। तो मैंने स्टार्ट में उनके साथ क्या किया था, मैं थोड़ा सा हुआ आप लोगों को गाइड कर देता हूँ, आई होप थोड़ा हेल्प करेगा। आप लोगों को फिलर्स का अंदाजा है? किस किस को पता है फिलर्स क्या होता है? नो, आई डोंट नो अबाउट इट पर्सनली। किसी और को पता है फिलर्स क्या होता है? एनीवन? No. ओके। जब आप बात कर रहे होते हैं, एवरी सिंगल पर्सन यू टॉक टू, हर बंदा फिलर यूज करता है, बस उसको पता नहीं है वो कौन सा फिलर यूज कर रहा है। somebody से राइट, इस तरह के वर्ड्स बार बार यूज करते हैं हर सेंटेंस के बाद। आई वाज डूइंग आई वाज डूइंग दैट, मतलब बीच बीच में फिलर्स यूज करते हैं। हर बंदे का फिलर अपना खुद का होता है, कुछ हाँ, कुछ यस, राइट, ऑफ कोर्स, फिर करके दोबारा वही सेंटेंस रिपीट कर रहे होते हैं। फिलर्स जो है ना आपको हेल्प करते हैं टू थिंक हाउ टू से दिस इन इंग्लिश इन द नेक्स्ट सेंटेंस। मतलब आपको एक सेकंड मिलता है, मिली सेकंड मिलता है, हाफ अ सेकंड मिलता है आपको फिलर बोलते हुए नेक्स्ट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो इंग्लिश में कैसे बोलना है वो सोचने के लिए। क्योंकि आपकी नेटिव मदर लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, तो आपको वो कैसे बोलना है उसके लिए आपको एक प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। आपका प्रोसेसर बहुत फास्ट है, आधे सेकंड का भी आधा सेकंड इनफ है आपके लिए ये डिसाइड करने में कि मैं अगला सेंटेंस कैसे बोलना है। आप फिलर यूज करते हैं, अगला सेंटेंस माइंड में प्रिपेयर करते हैं, करंट वाला बोलते हैं और अगला सेंटेंस रेडी होता है पहले से। तो फिलर्स आपने यूज करने हैं। अपना फिलर आप खुद नहीं बनाएंगे, खुद ब खुद ही बन जाएगा। आप यूजुअली जिसको फॉलो कर रहे होते हैं उसका फिलर आप एक्वायर कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। फिलर्स यूज करें, फिलर्स से दो कहानियां होंगी। एक, आपको नेक्स्ट सेंटेंस सोचने का टाइम मिल जाएगा, दूसरा आपको पॉज मिलेगा। एंड पॉज बहुत इंपॉर्टेंट है इन स्पीकिंग इन इंग्लिश इन उर्दू, लाइक एवरी सिंगल कम्युनिकेशन। मैं ये पॉज बहुत कम यूज करता हूँ, मैं बहुत तेजी से बोल जाता हूँ इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता, फिर मुझे डांट पड़ती है। सही है, मुझे आहिस्ता बोलना चाहिए और मुझे पॉजेस यूज करने चाहिए। पॉजेस की मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो सॉन्ग्स। आपने कोई सॉन्ग, आपका अपना फेवरेट सॉन्ग उठाएं और 4x के ऊपर सुन लें, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि गाने में था क्या। और आपका जो सॉन्ग है उसका 1x भी सुनेंगे, जो ओरिजिनली वो डिजाइन हुआ है वो इतना अट्रैक्टिव, इतना एडिक्टिव होता है कि आप चलते फिरते अपना गाना गाते रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर पॉजेस बहुत प्रॉपरली यूज हुए होते हैं। एक सेंटेंस गाया जाता है, फिर बीच में पॉज होता है, कभी कभी बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, फिर दोबारा सेंटेंस आता है। तो पॉजेस
तो दोनों सिचुएशन का एक ही हल है, फिलर्स अच्छे यूज करें तो पॉजेस भी खुद ब खुद ही आ जाएंगे। पॉजेस और फिलर्स ये दो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं इन स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा आगे का सोचने का। सेकेंडली, मैंने अपने पीयर्स को जो हेल्प किया था, तो वो काइंड ऑफ बोल नहीं पा रहे थे इंग्लिश, मैंने उनको कहा था उनकी जो भी अपडेट्स हैं उसको जीपीटी से लिखवा लें थ्रू अ स्क्रिप्ट। मैंने आज ये टिकट किया है, मैं इस टिकट पे काम कर रहा हूँ, इस टिकट में ये मसला आ रहा है और मुझे इसको सॉल्व करने में इतना टाइम लगेगा, ये चीज लिखो, चैट जीपीटी को बोलो इसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके दे और इसको रीड कर लो एक दफा। और जब क्लाइंट के पास जाओ, क्लाइंट जब तुम्हारा नाम ले कि XYZ व्हाट यू हैव डन टुडे एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुमारो, ये स्क्रिप्ट पढ़ लो। वो तुम्हारी शक्ल थोड़ी दिख रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सुकून सुकून से स्क्रिप्ट पढ़ लो। एक हफ्ता तो उन्होंने ऐसे ही काइंड ऑफ स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के अपडेट्स दी, लेकिन उसके बाद उनको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ी, उनकी आदत बन गई थी कि टिकट का नाम लेना है, बताना है इसमें सिचुएशन क्या है। आहिस्ता आहिस्ता उनको वर्ड मिल गए थे। और प्लस मैंने उनको रिकमेंड किए कि अच्छी मूवीज, अच्छे सीजन्स, कि यार ये देखो, इससे तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होगी, तो उनको वहां से वर्ड्स भी कुछ ना कुछ पता चले। सबकॉन्शियस लर्निंग के अंदर बहुत सारे वर्ड्स आ गए उन लोगों के पास जो वो यूज करना चाहते थे, क्योंकि बुक्स रीडिंग करने का किसी को टाइम नहीं है और किसी को पसंद भी नहीं होता। मूवीज देख के सीखो भाई, मतलब डब मत देखना, बस एक ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ इंग्लिश देखो और कोशिश करो समझने की क्या क्या कह रहा है। सबटाइटल्स भी पढ़ लो, सबटाइटल पढ़ के आप सही मैच कर पाओगे, जितने भी बुरी इंग्लिश बोल रहा होगा विद हेल्प ऑफ सबटाइटल्स और इंग्लिश आप समझ लोगे क्या बोला था उसने। यस, यू आर राइट। अच्छा उमर, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमारे पास कोई पर्सन नहीं है जिसके साथ हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकें। एंड आजकल के एआई के एरा में अब तो हम एआई टूल का भी यूज कर सकते हैं जिससे हम अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप कुछ बताना चाहें इससे रेलिवेंट, जिससे जो बिगनर्स है वो हेल्प आउट कर सकें। भाई पहली चीज तो ये है कि आपको एआई, आपने जब एआई को जाके बोलना है कि मुझे इंग्लिश आपसे बोलनी है और आप बोलते जाए वो जवाब देता रहेगा। स्पीकिंग की आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। अगर आप चाहें तो आप वॉइस के थ्रू बोले, कन्वर्ट होगा, टेक्स्ट में चला जाएगा, टेक्स्ट में रिस्पॉन्स आ जाएगा। आप चाहें तो स्पीकर पे आप सुन भी लें वो बोल क्या रहा है। सेकेंडली, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी इस तरह के मौजूद हैं जो कि आपको क्या कहते हैं ऑपोजिट जेंडर में आपको बना के दे देगा एक एवटार, और वो आपसे बात कर रहा होगा। थर्डली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अभी आप गूगल कर लें, बहुत सारे आपको ऐसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो क्या कहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में आपको प्रोवाइड करते हैं अदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। टॉक 2 नाम से था कि पता नहीं क्या था, बहुत पुरानी बात है 2014-15 की। मैंने एक सॉफ्टवेयर यूज किया था जब मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहा था। उसके अंदर स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इस तरह से डिफरेंट क्या कहते हैं कंट्रीज से लोग आ रहे थे और उनको भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी थी, मुझे भी इंप्रूव करनी थी। वहां पर आ जाता है कि भाई ये लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इनका ये लेवल है, वो लेवल 1 पे है, लेवल 2 पे। जो मेरा लेवल मैच करता था मैं उसमें से किसी को सिलेक्ट कर देता था, उनसे बात करना शुरू कर देता। इस तरह के सॉफ्टवेयर आपको मिल सकते हैं, आप लोग उन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है लोगों से बात करके अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। वो लोग भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने आए हैं तो वो आपका मजाक कभी नहीं उड़ाएंगे। चाइनीज हैं, जापानीज हैं, किसी भी और कंट्री के मतलब नॉन इंग्लिश स्पीकर्स हैं और वो इंग्लिश अपनी ठीक करने आए हैं और आपके सामने हैं और आप दोनों बोले और आपको टॉपिक मिलता है वहां पे कि इस टॉपिक के ऊपर बोलना है। वो कुछ बोल के जाता है, आपको समझ में आता है नहीं आता, आप भी कुछ बोलते हो, इवेंचुअली बस कॉन्फिडेंस मिलता है। एआई के सामने बोलने से शायद आपको वो कॉन्फिडेंस ना मिले जो आपको किसी और के सामने बोलने से मिलेगा। सही, यस यू आर राइट। और इसमें मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं 2 एप्लीकेशंस यूज करती थी जब कोविड का टाइम था। इट वाज मे बी हाई लोकल एंड हेलो टॉक, दीज बोथ प्लेटफॉर्म्स। तो वहाँ पे यही होता था कि हम एक टॉपिक डिसाइड कर लेते थे, एक टेबल क्रिएट करते थे, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग आते थे एंड वी यूज्ड टू डू कन्वर्सेशंस रिगार्डिंग टॉपिक्स। तो इससे भी काफी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं आप, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक या लास्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछना है आपसे, जो सबका दुख भी होता है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो सीएस की स्टूडेंट है, लेकिन उसकी कोडिंग भी अच्छी नहीं है, उसकी जीपी भी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसकी स्पीकिंग अच्छी है। तो क्या वो इंडस्ट्री लेवल पर इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स वगैरह कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, जीपीए मैटर नहीं करता भाई। तुम लोग अभी उस लेवल पे हो के बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी जीपीए मेंटेन करने के लिए, करते रहो। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आके कि अपनी जीपीए मेंटेन ना करो, लेकिन जीपीए हेल्प नहीं करती। आपकी स्पीकिंग इंग्लिश, आपके कॉन्फिडेंस वो हेल्प करता है प्रोफेशनली। आपकी जीपीए कोई नहीं पूछता। आप मुझे बता देना कोई ऐसा अगर इंटरव्यू हुआ है किसी कंपनी में आपका जिसमें आपसे पूछा गया कि आपकी जीपीए ये है, ओ इतनी कम जीपीए क्यों है, हमें तो ज्यादा जीपीए चाहिए, ऐसे कोई इंटरव्यू नहीं होता। वो फजूल लोग होते हैं आई थिंक, लेकिन ऐसा होते ही नहीं है। आई थिंक सो, वो फेक ही बनाए हुए होंगे।
कभी भी, मतलब मैंने बहुत इंटरव्यूज लिए हैं यहाँ पे, कभी किसी की जीपीए नहीं पूछी जाती। पूछ भी लिया जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है कोई और स्किल्स हो, हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है जी। तो आपकी सही जीपीए से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, जीपीए उनकी 2 है, 2 से भी नीचे, और वो लोग माशाल्लाह आज जो है वो जर्मनी में बैठे हैं और बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन उनकी जीपीए बहुत बेकार थी। और हम लोग शायद उनका मजाक भी उड़ाते थे उस टाइम पे कि यार तुम्हारा क्या होगा, आज हम ऊपर बैठे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे कोडर्स थे, वो आगे निकल गए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रांग थे, बहुत स्ट्रांग, वो सीधा यूएस चले गए और हम यहीं पाकिस्तान में बैठे रह गए, और उनकी जीपीए हमसे बहुत कम थी। सही है। क्योंकि लाइक जो चीज़ें मैं सुनती रहती हूँ ना एज अ स्टूडेंट, मैं वही चीज़ें आपसे पूछ भी रही हूँ क्योंकि और स्टूडेंट्स की भी इससे हेल्प आउट हो जाएगी। बिकॉज मैं भी फिफ्थ अभी सेमेस्टर मेरा जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। जो चीज़ें मैं सुनती हूँ ना, क्योंकि मैं सीएस बैकग्राउंड से ही हूँ, आई एम डूइंग बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, सो पीपल थिंक दैट आपका लाइक जीपी मेंटेन होनी चाहिए, आपकी जीपी अच्छी हो तो आपको सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब मिलेगी, वरना आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। 3 से कम वाला तो अप्लाई ही ना करे, और भूल जाए उसको, कभी इंटर्नशिप भी मिलेगी और कभी वो जॉब भी कर पाएगा, या अब्रॉड भी वो अप्लाई नहीं कर सकता, और मास्टर्स के लिए भी 3 जीपी तो एटलीस्ट चाहिए। तो ये सब हाँ, बातें मैंने सुनी है काफ़ी, तो मैंने एक बात सोचा मैं आपने सही पर्सनली बोली है, पूछूं। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि हायर एजुकेशन के लिए आपको जीपी चाहिए होती है, ये बात बिल्कुल सही है। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, बाकी सारे लोगों से सुना भी है कि जॉब के लिए कोई लेना देना नहीं है जीपीए का, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए आपको जीपी चाहिए होती है। और अगर आप कहीं पर अब्रॉड अप्लाई कर रहे हैं फॉर मास्टर्स तो आपको जीपीए मेंटेन करनी है उसके लिए, दैट्स राइट। लेकिन मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ फोली 3 में भी एमटीए प्रोग्राम होता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, वहाँ पे जीपीए हो सकता है आपसे पूछें, लेकिन किसी इंटरव्यू में आपसे नहीं पूछेंगे। और यहाँ पे भी एमटीओ प्रोग्राम के अंदर इंटरव्यूज होते हैं, और इवेंचुअली आपको इंटरव्यूज की तैयारी करनी है। एमटीए प्रोग्राम इट्स अ गुड थिंग, कंपनी में इन होने के लिए आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग आओ, 3 महीने गुजारो, सारी चीज़ें सीखो, वापस चले जाओ। और 100 लोग आते हैं तो उनमें से 10 सेलेक्ट होते हैं खाली, वो लोग क्लीन टेक कर लेते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आने के लिए आपको शायद जीपीए कुछ मेंटेन करनी पड़े, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इवेंचुअली आपको इंटरव्यूज क्लियर करने हैं, जिसके अंदर जीपीए कोई काम नहीं है, उसमें कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस का काम है। बट उमर, द थिंग इज लाइक अब सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, तो अगर हम कोई फॉर्म वगैरह भी फिल करते हैं अबाउट जॉब और अबाउट इंटर्नशिप एज वेल, तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन ही यही होता है कि आपकी जीपी जो है वो 3 से ज़्यादा हो या 3 हो, तो उसमें इशू नहीं आता कोई? नहीं, जैसे मैंने बताया वो अगेन एमटीओ प्रोग्राम्स है ना, मतलब आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो एमटीओ प्रोग्राम्स के थ्रू कर रहे हैं, ज़्यादा बेहतर ये है आप जॉब्स पे अप्लाई करें ना। आप लिंक्डइन के ऊपर जॉब सर्च करते हैं और आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, वहाँ कभी जीपीए नहीं पूछी जाती। फ्रेश भी ओके। मांग रहे हैं तो जीपीए नहीं पूछी जाती। जॉब अप्लाई करने पे आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चे उठाते हैं और उनमें से सिलेक्ट किए जाते हैं, दैट्स वाई हमें कोई डिफरेंशिएटर रखना पड़ता है कि कौन से वाले को उठाएं कौन से को नहीं उठाएं। तो उसके अंदर बहुत सारे होते हैं फैक्टर्स, वन ऑफ द फैक्टर इज जीपीए, उससे लोग जज कर लेते हैं कि यार ओके। शायद ओके। दैट्स ऑल। लेकिन अगर आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है और आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं और दूसरे की जीपीए बहुत अच्छी है और वो बोल नहीं पा रहा सही से, अगर आप सीईओ आप किसको सिलेक्ट करेंगे, जीपीए 3.9 को या फिर 2.8 को, जो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है उसने क्या किया। ओके, दैट इज ग्रेट। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? तब बोलेंगे कोमल पूछी जा रही है। एनीवन वांट्स टू स्पीक सो यू कैन स्पीक, वरना हम सेशन एंड करते हैं। महक, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है? समिया? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके। अच्छा, मेरी ये पर्सनली आदत है, इवन अबाउट इन क्लास एज वेल, नॉट इन जस्ट अबाउट होस्टिंग, मैं बहुत क्वेश्चंस पूछती हूँ। बस बोलती अच्छी है बात है। कोई topic पे कि बस ये सबसे ज्यादा लाइक क्वेश्चंस पूछने से ना हम लोग ही ज्यादा चीजें सीखते हैं, क्योंकि आप वो जो क्वेश्चन उस टाइम आपके दिमाग में चल रहे होते हैं आप पूछ लेते हो ना, तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होती आपको। वरना कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसमें क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो, तो ये सबसे ज्यादा नुकसान वाली बात है वैसे। या इसके अंदर मैं एक आपको सेंटेंस बताता हूँ व्हिच वी यूजुअली यूज व्हेन वी आर टॉकिंग टू अ क्लाइंट। We हम्म। usually work on a phenomena of being dumb today rather than being dumb tomorrow. आज बेवकूफ बन जाओ, हर सवाल कर लो, बेसिक सवाल भी दोबारा कर लो, और अगले को बता दो कि यार आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी नो डम टुडे,
so that I don't make a blunder tomorrow कि मैं आज पूछ लूँ ज़्यादा बेहतर है। ऐसा ना हो मैं कोई चीज़ अज्यूम करके चला जाऊँ कि यार ये ऐसे होगा और मैं पूछूँ नहीं तुमसे और मैं वो डेवलप कर दूँ, तो लाखों डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा यहाँ पे यार। तो हम इनिशियल रिक्वायरमेंट गैदरिंग में ना हम क्लाइंट को चीज़ बता देते हैं कि वी विल आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस, आपको इस बार एंटरटेन करना पड़ेगा। और वो कहता है ठीक है, जितना पूछना है पूछो, कल को मुझे ब्लेंडर नहीं चाहिए। हम कहते हैं ठीक है, तो हम पूछते हैं, हर एक चीज़ 2-2 बार पूछते हैं, पूछना चाहिए। सही। अच्छा, किसी को आई थिंक कुछ पूछना नहीं है, सो हम एंड करते हैं अपना सेशन। थैंक यू उमैर फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। हमने अच्छा, बहुत मुझे ये कहना था कि अच्छा। हमारे मतलब हमारी जो यूनी है ना, वहाँ हमें यानी स्टार्ट से ही फर्स्ट सेमेस्टर से ही टीचर्स इस बात पे जोर देती हैं कि अपनी जीपीए मेंटेन रखो, वरना एमएस के लिए जाओगे ना तो वो लोग आपको फॉर्म भी नहीं देंगे। तो सही यानी है। हमें अक्सर टीचर्स ने यही कहा है कि मतलब एमएस में ना यानी विंडो से फॉर्म तक नहीं देते, वो कहते हैं कि भाई ये एलिजिबल नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे। तो यानी वो हमें यही कहते हैं कि बस अपनी जीपीए मेंटेन रखो। तो क्या कहना सही है उनका? बिल्कुल सही है। मैंने आपको कहा हायर स्टडीज के लिए जीपीए जरूरी है, जॉब के लिए नहीं है, हायर स्टडीज के लिए जीपीए जरूरी है। शी इज राइट। ये आपको बताया था, आपने बाहर भी अप्लाई करना है तो भी जीपीए काम आएगी। बाहर पढ़ने के लिए अप्लाई करना है अगर, तो जॉब के लिए तो अप्लाई करना है, कोई जीपीए काम नहीं है। पढ़ने के लिए हायर स्टडीज के लिए जीपीए मेंटेन करना जरूरी है। सही कह रहे हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? वैसे सब जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप सब में कॉन्फिडेंस आ रहा है। उमर, थैंक यू फॉर योर मोटिवेशन। नो वरीज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और नो वरीज, अगर आपको दोबारा भी मुझे जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह अवेलेबल कर लूंगा अपने आप को इंशाल्लाह। Thank you so much. So, as we conclude today's session, one message becomes very clear in tech. Leadership doesn't start with authority, it starts with communication, clear goals, transparent conversations, और confidence communication. तो हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच उमैर फॉर ज्वाइनिंग एंड एवरीवन। आप लोगों ने अच्छे क्वेश्चंस पूछे। इंशाल्लाह फिर किसी सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। थैंक यू, हाफिज़।